Hello student, today our topic is variable overhead variance. Variable overhead variance. Variable overhead. आप लोग को मालूम है all indirect expenses are comes under your overhead. Overhead is of two types, fixed overhead and your variable overhead. In case of fixed overhead, the overhead is fixed in nature, जो कि हम already कर चुके. But in case of variable, once the production is increased, then generally you will find variable overhead is also increased. It is very proportionate to the production. Clear my point? So our overhead that is divided into two parts. Overhead is divided into two parts, fixed and your variable. Now, in simple language, variable means, in simple language, variable means a number or amount or a situation that can change and affect something in different way. That is called variable in simple language. But variable overhead means this is related to your production. Variable overhead means variable expenses. Once production is increased, our variable expenses or overhead is also very proportionately it is increased. Now, in case of variable overhead, it may be material. Material is of two types, direct material and indirect material. I am talking about indirect material. Clear my point? Indirect material, labor and your overhead. Indirect material, labor and indirect labor and your overhead all are variable in nature. Once the production is increased, definitely this cost is also proportionately it is increased. So, in case of indirect material, indirect labor, indirect overhead, this is recoverable one. Remember, overhead are always recoverable from the actual production. हम उसको बोलते हैं रिकवरी अमाउंट. जो कि हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में भी कर चुके हैं. क्लियर माय पॉइंट? इन केस ऑफ ओवरहेड वेरिएंस certain things are taken into the account. ये चीज हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए कोशिश करते हैं. You will find estimate is always there, budget is always there. Budget is prepared in the early stage of the production, and each and every company they try to achieve their budget. If actual is more than the budget, then that is adverse. If actual is less than the budget, that is favorable. So we are going to calculate the overhead variance. So before starting, suppose एक क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चंस में बोल रहा है कि raw estimate
एक एस्टिमेट बोल रहा है प्रोडक्शन प्रोडक्शन 10,000 यूनिट। कितना यूनिट प्रोडक्शन? 10,000 यूनिट्स। क्लियर माय पॉइंट? देन indirect labor cost, indirect labor cost, that is rupees 1 lakh, rupees 1 lakh. Clear my point? Now hours work, that is called direct labor hour. Direct labor hour is 5,000 hours. 5,000 hours. Clear my point? So, can you find the labor hour rate? If our estimate production is 10,000 unit, direct labor rupees 1 lakh, and direct labor hour, that is your 5,000 hours. Then we will first find out labor rate per hour. Labor rate per hour. Labor rate per hour. कितना होगा? How much? How much? Total we are going to pay 1 lakh rupees, 1 lakh. Hours is your 5,000 hours. इसका मतलब 5,000 आवर्स के लिए हम खर्चा कितना किए? और 5,000 आवर्स खर्चा कितना है? 1 लाख। 1 के लिए कितना होगा? 1 लाख divided by 5,000. Clear my point? So hourly rate is how much? This comes to rupees 20. Hourly rate is comes to rupees 20. Clear my point? Now, सर भुगतान जॉइन को समझाएंगे बस। So total amount paid, that is 1 lakh, 5,000 hours, per hour rupees 20. If a labor work for 1 hour, then he will get 20 rupees. Clear my point? Now he will find 10,000 unit, 10,000 unit of production, that is estimated. Clear my point? So to produce 1 unit, so to produce 1 unit, how many hours is required? Clear my point? कैसे निकालेंगे? 10,000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना आवर्स चाहिए? 5,000 आवर्स। क्लियर माय पॉइंट? 5,000 आवर्स। तो एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना होगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 5,000 hours. This is unit. Then comes to 0.50 or 30 minutes. Clear my point? So to produce 1 unit of article, it need 30 minutes. Clear my point? How many minutes? 30 minutes. So to produce, लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो।
So to produce 1 unit, it need 30 minutes. Clear my point? Then in 1 hour 60 minutes, how many units are produced? 2 units. 60 by 30 is equal to 2 units. Means per 1 hour unit produced is 2 unit. 2 unit. Payment paid ₹20. Payment paid ₹20. आप लोग देखिए, हम लोग निकाल चुके हैं 20 rupees per hour. That means per hour 2 units are produced which cost 20 rupees. Then cost per unit is equal to ₹20 by 2. This is 10. This is called recovery rate. This is called your recovery rate. कैसे में निकाला समझ में आया सबको? Clear? First, अच्छा. Now, if the recovery rate is 10, then you will find, हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में, हम लोग एस्टिमेट किए थे 1 लाख रुपया खर्चा होगा. क्लियर? कितना आवर्स दिए थे? 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, 5,000 आवर्स. ये 3 इंफॉर्मेशन देते हुए हमको ये रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा. क्लियर माय पॉइंट? आप देख लीजिए, दिखे हैं तो कैसे मैं निकाला हूं. सो फर्स्ट योर ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द रिकवरी रेट. हम लोग एस्टिमेट किए 10,000 यूनिट, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोडक्शन होते जाएगा, ये 1 लाख रुपया भी रिकवर होते जाएगा पर यूनिट 10 रुपया की. मान लीजिए मैं एक फर्स्ट मंथ में 1,000 यूनिट प्रोडक्शन किया. पहला महीना में कितना प्रोडक्शन किया तो मेरा कितना रुपया रिकवरी होगा? 1000 यूनिट मल्टीप्लाई इनटू 10, मेरे को रिकवर हो गया कितना? 10,000 rupees. 10,000. This recovery rate is fixed. Recovery rate is fixed. Recovery rate कभी भी चेंज नहीं होता है. हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड में भी पढ़ चुके हैं. क्लियर माय पॉइंट? एंड रिमेंबर, योर ओवरहेड वेरिएंस इज रिलेटेड टू योर आइदर लेबर आवर और मशीन आवर. क्लियर माय पॉइंट? It may be related to machine hour or it may be related to your labor hour. So first your duty is to calculate the recovery rate. मान लीजिए पहला महीना में 1,000 किया तो 1,000 into 10 10,000 रिकवर हो गया. मतलब 1 लाख में से मेरा कितना रिकवर हो गया? 10,000. फिर हम फरवरी में 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट 5,000 की, तो मतलब 5,000 into 10, 5,000 into 10 50,000 रिकवर हो गया. इसमें से रिकवर हो गया ओवरहेड में से. सो ओवरहेड आर ऑलवेज रिकवर्ड. सो दैट्स व्हाई योर ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द रिकवरी रेट. क्या निकालना पड़ेगा आपको? रिकवरी रेट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा. क्लियर? हम नेक्स्ट आते हैं. लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले दीजिए. देन इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम रेशियो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Target is
10,000 यूनिट पहला जो क्वेश्चन था। देन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड रुपीज 1 लाख। Then your hours, estimated hours 5,000 hours. Clear? Actual given, actual production, that is 11,000 unit. Then variable overhead, 1,25,000. Then hours 5,500 hours. This is your actual. This is your actual. This is your estimated one. Now, if you think हम लोग प्रोडक्शन टारगेट किए थे 10,000, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया? 11,000। ऑब्वियसली आप लोग का खर्चा भी बढ़ा होगा। क्लियर है पॉइंट? 10,000 के लिए एक्चुअल खर्चा हम सोचे थे 1 लाख, लेकिन खर्चा हो गया 1,25,000। ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा क्योंकि हम लोग 1,000 यूनिट जो है एक्सेस प्रोडक्शन किए। तो हम लोग 10,000 यूनिट के लिए 5,000 आवर्स सोचे थे, लेकिन कितना आवर्स ले लिए? 5,500 आवर्स। तो ये सारा डिफरेंस है। आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम रिवाइज निकालेंगे, रिवाइज आवर्स, तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब तक ये दोनों को हम इक्वल नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको रिवाइज्ड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। क्लियर? अच्छा, इन जनरल अगर आप बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस देखो, हम लोग रिकवरी रेट कितना निकाले थे? रिकवरी रेट 10 रुपया। रिकवरी रेट कितना निकाले थे? 10 रुपया। सबसे पहले हम रिकवरी रेट निकाले 10 रुपया। अच्छा, रिकवर कितना हुआ देखते हैं। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है? प्रोडक्शन 11,000 यूनिट इंटू 10, 1,10,000। कितना रिकवर हुआ है? 1,10,000 रिकवर। मतलब हम सोचे थे खर्चा 1 लाख, रिकवर कितना किए? 1,10,000। तो हम लोग का क्या होगा? फिर बताओ आप लोग, रेशियो क्या है इसका? रेशियो होगा अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, माइनस एक्चुअल रिकवर। कितना हुआ है बोलिए? देखो एक्चुअल कितना हुआ है यहाँ? 1,25,000। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 1,25,000 खर्चा हो गया, क्योंकि एक्चुअल के ऊपर में ये बेस है। तो अमाउंट रिकवर्ड कितना हुआ है? अमाउंट रिकवर्ड इज
1,10,000. Amount recovered is 1,10,000. लेकिन खर्चा कितना कर दिए? 1,25,000. तो यहाँ जो है 15,000 आपका एडवर्स है. 15,000 क्या आ गया आपका? एडवर्स. किसी को कोई डाउट है इसमें? So variable cost variance is equal to amount recovered. Amount recovered कितना है? प्रोडक्शन कितना किए? 11,000. रिकवरी रेट कितना निकाले थे पर यूनिट? 10. तो टोटल रिकवर्ड कितना हो गया? 1,10,000. सो अमाउंट रिकवर्ड 1,10,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 1,25,000. खर्चा कितना होना चाहिए? 1,10,000 होना चाहिए, लेकिन खर्चा कितना किए? 1,25,000. तो डिफरेंस कितना आ गया? 15,000. दैट इज एडवर्स. दैट इज योर एडवर्स. क्लियर है पॉइंट? नाउ दिस cost variance again it is divided into two parts. Overhead, variable overhead, cost variance it is divided into two parts. First one is your, write down, variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. And next one is variable overhead volume variance. Variable overhead volume or quantity. Variable overhead volume or quantity variance. Volume or quantity variance. Clear my point? Now expenditure. In this case, you will find first the revised standard. First पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? रिवाइज स्टैंडर्ड. मैं बोला था आप लोग को यहाँ 5,000 आवर्स है, यहाँ 5,500 आवर्स है. जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक हमको कंपैरिजन करना. अगर दोनों बराबर, मटेरियल में भी ये चीज कर चुके हैं, लेबर में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी जरूरत है. ये दोनों अगर यहाँ पे जो है ये आवर्स अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो आपका कोई भी काम नहीं होगा. हम लोग का जो फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड का, क्या फॉर्मूला है? कौन बताएगा? देखिए हम लोग का यहाँ, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, नहीं तो इनको लिख दे रहा हूं. देखिए 5,000 के लिए, 5,000 आवर्स के लिए हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड कितना था? 1,00,000. 5,000 के लिए वेरिएबल ओवरहेड था 1,00,000. 5,500 के लिए कितना होगा? तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,000 into 5,500. ये कितना होगा आप लोग बताओ? 1,10,000. 1,10,000 कितना होगा? 1,10,000. Clear my point? This is your revised value. So in case of variable overhead expenditure, revised standard cost revised standard overhead
माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल। दोबारा फिर समझा देता हूं मैं। हम लोग जब एस्टिमेट किए थे 5000 आवाज के लिए 1000 ओवरहेड होगा, लेकिन हम प्रोडक्शन कितना आवाज के किए 5500, तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको रिवाइज स्टैंडर्ड निकालना जरूरी है। इसीलिए मैं बोला 5000 आवाज के लिए आवर ओवरहेड इज 1 लाख, तो 5500 के लिए कितना होगा, दैट इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड। क्लियर है पॉइंट? रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड हम लोग कितना निकाले हैं 1,10,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितना है 1 लाख। एक्चुअल कितना है 1,25,000। एक्चुअल है 1,25,000, तो यहाँ भी कितना हजार रुपये आ रहा है 15,000। ये एडवांस क्या है, ये एडवांस। क्लियर माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? बंद हो जाएगा तो दोबारा लगा लेना है। अच्छा, अब देखो वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम और क्वांटिटी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस अमाउंट रिकवर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस अमाउंट रिकवर्ड। तो देखो रिवाइज स्टैंडर्ड कितना निकाले हैं 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस अमाउंट रिकवर्ड भी कितना है, यहां लिखा है दिस इज अमाउंट रिकवर्ड is also 1,10,000. Amount recovered is also 1,10,000. तो यहाँ नील, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, नील। क्लियर है पॉइंट? और एक इंटरेस्टिंग बात देखना, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। देखो यहाँ कितना एडवांस निकला है 15, यहाँ तो नील, तो यहाँ 15 हो गया, तो आपका कॉस्ट वेरिएंस भी कितना निकालेंगे 15, तो बराबर है। सो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू योर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? क्लियर समझ में आया? जहां पे भी हम लोग का एडवांस आ रहा है, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा आवाज लगाए, कॉस्ट में देखिए, कॉस्ट हम सोचे थे 1 लाख, यहाँ आ गया 1,25,000, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है अमाउंट रिकवर्ड कितना किए थे 1,10,000 हुई पर बाकी जो है आप देखो ये लॉस है, ऑब्वियस यहाँ पे डिफरेंस आ गया। कहीं जगह पे आपका डिफरेंस आएगा, लॉस में आएगा, एडवांस आएगा, कहीं जगह पे हम लोग का फेवरेबल भी आएगा। सो इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, these are the 3 variants and this is the process of your calculation. This is the process of your calculation. आप लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? सो इसका लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है
Write down the procedure. First, find out the recovery rate. First, find out the recovery rate. First, find out the recovery rate. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? Your duty is to find out the recovery rate. जब तक हम recovery rate नहीं निकालेंगे, first find out the recovery rate. सबसे पहले आपको रिकवरी रेट निकाल लेना है and this is calculated write down, this is calculated on the basis of estimated or budgeted overhead. मैं आप लोग को कैलकुलेशन बता दिया। इसका फॉर्मूला कैसे था? एस्टिमेटेड ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड। एस्टिमेटेड ओवरहेड O by H means overhead और बजटेड overhead divided by estimated production. और budgeted production into recovery rate. Clear? Then total recovery rate is equal to actual production multiply into recovery rate. Actual production multiply into. Then third, revised standard is calculated on the basis of unit produced rather on the basis of labor hours. On the basis of labor hours. इसको भी लिख लो आप। 3 चीज लेना है, रिकवरी रेट निकालना है, टोटल रिकवरी अमाउंट निकालना है, रिवाइज स्टैंडर्ड निकालना है। क्लियर है पॉइंट? रिवाइज स्टैंडर्ड इसीलिए निकालना पड़ता है जब दोनों का आवर्स डिफर हो, क्योंकि वी आर बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। क्लियर है पॉइंट? तो ये था आप लोग का ओवरहेड वेरिएंस। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे सेल्स वेरिएंस का। आप सबको धन्यवाद।
अभी हम लोग टाइम आउट हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स बता रहा हूँ। थैंक यू।